All right. Yes. So let us begin our session with the Navkar mantra. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Uvajjayanam, Namo Loe Savva Sahunam, Eso Panchanamokaro, Savva Pavapanasano, Mangalanam cha Savvesim, Padamam Havai Mangalam. Hello everybody, Jai Jinendra. Now, before we begin our session, it is but constitutional to introduce you with the Ancient Jainism Forum. Ancient Jainism is an initiative to spread awareness on Jain history, heritage, archaeology, literature, and related aspects. For this, we organize online sessions which are open to all, revolving around interesting topics that cover fascinating aspects of the Jain world. We are very proud to inform you that we have had the honor of hosting eminent scholars like Dr. Hampa Nagarajaya and Dr. M.N.P. Tiwari, along with a number of other scholars and students who have done research on Jainism. To get regular updates, please follow us on Instagram and subscribe to our YouTube channel. Now, about the speaker, let me introduce you with Mr. Kshitij. We have today the pleasure of hosting Mr. Kshitij Jain, who is a young and promising speaker who will speak on Anekantik approach to knowledge in Jain manuscript tradition. Prior to this, Mr. Kshitij has been a speaker at Jain Talks, a weekly program organized, excuse me. Yeah, pardon me. Yeah. So prior to this, Mr. Kshitij has been a speaker at Jain Talks, a weekly program organized by the Jain Foundation, where he discussed about the significance of Jainism in the intellectual and literary traditions of India. He has interviewed by he was interviewed by Air Akashvani, Mount Abu, on literary activities and achievements. Currently, he is a student at St. Stephen's College in the University of Delhi, involved in the study of Sanskrit at bachelor's level. He has several research publications to his credit, including those centered around India's history and culture. He has co-authored a paper titled Capability Approach to Development in Jain Doctrines that was published in International Journal of Financial Management and Economics. Mr. Kshitij also writes poems which have been published in several newspapers and in literary magazines. Welcome, Kshitij. Now, about today's session. As we know, Anekantavad is a fundamental doctrine of Jainism, which takes into consideration multiple viewpoints to reach a conclusion. This session will focus on the Anekantik philosophy applied by Jain intellectual tradition towards knowledge discourse as depicted in the Jain manuscript tradition. The theme will revolve around the sacred stature given to knowledge by the Jains through production and preservation of numerous manuscripts over centuries. The manner in which Jain manuscripts reflect engagement and discourse with other schools of thought will be of special emphasis here. Now, I welcome Mr. Kshitij and I hand the session over to you. Thank you, Kshitij. Jai Jinendra, Sadar Namaskar. First of all, I would like to thank everyone for joining in today and because of which we can actually have a discourse on the topic which we have at hand today. Special thanks to the entire team of Ancient Jainism for giving me this chance to initiate a discourse on the topic, the Anekantik approach to knowledge in the Jain manuscript tradition. I would also like to thank Yogesh ji for such a generous introduction he has just given. So the topic which we have today is the Anekantik approach to knowledge in the Jain manuscript tradition.
और जिससे पहले हम इस टॉपिक पर, इस विषय पर सीधा चर्चा प्रारंभ करें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि हम इस टॉपिक को थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट करके समझें कि इसमें आखिर हमारे लिए डिस्कोर्स करने लायक क्या क्या एलिमेंट्स हैं, किन विषयों पर, किन एलिमेंट्स पर हमको डिस्कोर्स करना है। तो इस टॉपिक में मैंने 3 भागों को या 3 पार्ट्स को कवर करते हुए पूरा एक रिसर्च पेपर लिखा कुछ समय पहले, क्योंकि जैन मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन, जैन मैन्युस्क्रिप्ट कल्चर, ये मेरे लिए काफी समय से एक इंटरेस्ट का टॉपिक रहा, एक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट रहा। और कुछ समय पहले जब मैं इस पर पढ़ते पढ़ते मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि क्यों ना इस चीज पर रिसर्च की जाए कि कैसे अनेकांतवाद जैन मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन में हमको दिखता है, कैसे रिप्रेजेंट होता है, और कैसे उसका इंपॉर्टेंस इंडियन इंटेलेक्चुअल सिस्टम में है। तो इन चीजों को रिवॉल्व करते हुए मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा जिसको बेस बनाकर आज की ये पूरी प्रेजेंटेशन हमारी रहेगी। तो इस टॉपिक में मेजरली 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन, कि आखिर मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, और उसी के अंतर्गत वी विल नीड टू डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट जैन मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन एंड इट्स हिस्ट्री। द सेकंड थिंग इज द अनेकांतिक अप्रोच टू नॉलेज, कि अनेकांतिक अप्रोच टू नॉलेज आखिर है क्या, और ये जैन मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन में किस तरह रिफ्लेक्ट होती है। और तीसरी और शायद मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण चीज, कि अगर जैन मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन में अनेकांतिक अप्रोच टू नॉलेज या ज्ञान के प्रति अनेकांतवादी दृष्टिकोण हमको दिखता है, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर या फिर इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में इसके क्या योगदान रहे हैं, इसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, और एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इंडियन हिस्ट्री के किसी स्टूडेंट के लिए, इंडियन कल्चर के किसी स्टूडेंट के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, हम इस पर भी आज चर्चा करेंगे। तो जैसे सबसे पहले कहा, द फर्स्ट थिंग विच वी विल नीड टू डिस्कस इज अबाउट जैन मैन्युस्क्रिप्ट, इज अबाउट मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन, की व्हाट एक्चुअली इज अ मैन्युस्क्रिप्ट। इज द नेक्स्ट स्लाइड visible to you all? Hello? Not yet, not yet. Okay, just give me a second. So sorry, my laptop was just lagging, so it created some problem. So अगर हम नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट की साइट पर जाएं, तो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट डिफाइंस मैन्युस्क्रिप्ट as a handwritten composition on paper, bark, cloth, metal, palm leaf or any other material dating back at least 75 years and has significant scientific, historical और aesthetical value। यानी कोई भी ऐसा हस्तलिखित ग्रंथ जो कम से कम 75 इयर्स पुराना हो, जिसका कोई हिस्टोरिकल या नॉलेज सेंट्रिक इंपॉर्टेंस हो, उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। And according to Ministry of Culture, Government of India, there are 5 million manuscripts present in India. Approximately 50 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स भारत में आज के समय हैं, जिनमें से मैक्सिमम ना आज तक पब्लिश हो पाई है, ना डिसिफर हो पाई है। तो इससे हम अपने आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे इंडियन हिस्ट्री के रिकंस्ट्रक्शन में या इंडियन कल्चर की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग में मैन्युस्क्रिप्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, और कैसे इस पर बहुत रिसर्च होना अभी बाकी है। As the Ministry of Culture rightly says, that manuscript collections constitute the memory of India's history, heritage and thought. क्योंकि फॉर सेंचुरीज हमारे जो विद्वान है या हमारे इवन जो कॉमन मैन है, जो साधारण व्यक्ति हैं, उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रयोग किया है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को, एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को न केवल प्रिजर्व करने के लिए, बल्कि उसे नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन करने के लिए, जिसके कारण आज भी हमारी इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की जो ये पूरी परंपरा है, जो पूरा एक चेन है, वो आज भी इंटैक्ट है, आज भी संरक्षित है। अगर अब जैसे हमने कहा था कि मैन्युस्क्रिप्ट एडिशन के अंतर्गत हमको थोड़ा समझना पड़ेगा जैन मैन्युस्क्रिप्ट एडिशन को, तो अगर हम जैनिज्म की हिस्ट्री पर एक सुपरफिशियल आउटलुक भी देखें, अगर उसमें एक सुपरफिशियल स्टडी भी करें, तो इट विल गेट वेरी क्लियर टू अस कि मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन और मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन, इसका जैन धर्म में या जैन लेटी में, जैन समाज में न केवल इंटेलेक्चुअल इंपॉर्टेंस रहा है, बल्कि इसका हिस्टोरिकली एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी हमको देखने को मिलता है। ज्ञान भंडागार या फिर जैन लाइब्रेरीज जो मेडिवल टाइम में जैन समाज द्वारा कंस्ट्रक्टेड की गई,
उन पर वो अपने आप में एग्जाम्पल है कि कैसे लार्ज स्केल पर मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन और प्रिजर्वेशन जैन समाज में हो रहा था। और 19th सेंचुरी से वेस्टर्न और इंडियन इंडोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने जैन लाइब्रेरीज पर या ज्ञान भंडागारों पर जितना रिसर्च किया है, उससे ये बात अपने आप क्लियर हो जाती है कि जैन मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन कोई एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर टाइम फेज में बाउंड फिनोमिना नहीं था। ये एक बहुत लार्ज स्केल फिनोमिना था जिसका सेंचुरीज तक जैन समाज में, जैन कल्चर में इंपॉर्टेंस रहा। पाटन, जैसलमेर, कैम्बे और बहुत सारी अन्य जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की जगह है, वहां पर हमको जो ज्ञान भांडागार मिलते हैं, उनसे ये बात हमको समझ में आती है कि किस विगरस स्पिरिट से द जैन्स प्रिजर्व्ड एंड डॉक्यूमेंटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स फॉर सेंचुरीज। इस पॉइंट पर कोई भी ये सवाल उठा सकता है, ये क्वेश्चन कर सकता है कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन जिसकी आप बात कर रहे हो और जिसके लिए आप कह रहे हैं कि इट वाज ऑन सच अ लार्ज स्केल, was it only for communitarian purposes or was it in some ways related to the intellectual developments that were taking place in India at that time? क्या उसका केवल सांप्रदायिक या सामाजिक महत्व था, या उस समय जो भारत में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स हो रहे थे, इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट्स हो रहे थे, उनसे भी ये मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन किस तरह रिलेटेड है? और क्या इस मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन ने इंडियन नॉलेज सिस्टम में कंट्रीब्यूट किया, और यदि किया तो इन व्हाट वेज एंड व्हाट टर्म्स डिड इट कंट्रीब्यूट टू इंडियन नॉलेज सिस्टम? तो आज का हमारा जो ये डिस्कोर्स है, आज का हमारा जो डिस्कशन है, इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा टू एनालाइज दीज क्वेश्चंस इन द लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ फिलोसफी ऑफ अनेकांत। अनेकांत के एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हम मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और कल्चरल सिग्निफिकेंस पर बात करेंगे, और ये समझने की कोशिश करेंगे, इस पर एक डिस्कोर्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे जैन मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन जो अनेकांत की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, उसने इंडियन इंटेलेक्चुअल स्फीयर को कैसे एनरिच किया। ये हमारे डिस्कोर्स का सेंट्रल पॉइंट होगा। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि सीधा अनेकांतिक अप्रोच और इसकी इंपॉर्टेंस को समझने से पहले हमको जैन मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन की हिस्ट्री और उसकी अप्रोच को समझना आवश्यक पड़ जाएगा। थ्रू आउट जैन फिलोसफी अगर हम देखें तो जैन अप्रोच टू टेक्स्ट एंड नॉलेज हैज बीन ऑफ रेवरेंस। ज्ञान मात्र के प्रति जैन दर्शन में एक सेक्रेडनेस की भावना है, एक पवित्रता की भावना है, और जैन दर्शन ज्ञान को या ज्ञान की साधना को, नॉलेज की परस्यूट को एक श्रद्धा के भाव से, एक सेक्रेडनेस के भाव से देखता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमको मिलता है उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र में, जहां स्वाध्याय को न केवल 12वां तप कहा गया है, अपितु it has been considered the foremost and the most important tapas out of the all 12, which ultimately signifies कि नॉलेज का, ज्ञान का जैन दर्शन में, जैन धर्म के इतिहास में कितना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और जो ये कि रेवरेंस नॉलेज के प्रति, एक जो ये आदर का भाव है ज्ञान के प्रति, ये केवल दर्शन या फिलोसफी की लेवल पर नहीं है। मेडिवल जैन समाज की रिचुअलिस्टिक और धार्मिक अगर हम ट्रेडिशंस को देखें, प्रैक्टिसेस को देखें, तो उसमें भी ये रेवरेंस हमको झलकती हुई दिखेगी। आचार्य हेमचंद्र ने अपने योग शास्त्र में मैन्युस्क्रिप्ट की डोनेशन को या शास्त्रों के भेंट को किसी भी श्रावक की सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटीज में से एक बताया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हमें आज के समय देखना है तो वह होगा शुद्ध पंचमी का पर्व, जो जैन समाज के सभी वर्ग, पूरा जैन समाज मनाता है, और उस दिन न केवल मुनि संघों को शास्त्र भेंट करता है, बल्कि जो प्रिजर्व मैन्युस्क्रिप्ट है, प्रिजर्व शास्त्र हैं, उनको भी मेंटेन करता है, उनको प्रिजर्व करता है। इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा मुझे नहीं लगता करना आवश्यक है, क्योंकि हम हर साल इस पर्व को मनाते हैं, और ये पर्व उसी ट्रेडिशन का एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें नॉलेज को, जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स को इतना इंपॉर्टेंट माना गया कि इसका प्रिजर्वेशन, उसका डॉक्यूमेंटेशन एक मॉरल नहीं, एक रिलीजियस ड्यूटी श्रावकों के लिए बन गई। नलिनी बलबीर ने अपनी रिसर्च में, नलिनी बलबीर ने जैन मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन पे काफी रिसर्च किया है, और उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान डिसरिस्पेक्ट के कॉन्सेप्ट पर भी बात की है, जिसको आस्थान, इस टर्म से, इस शब्द से डिनोट किया गया है। मध्यकालीन जैन श्वेतांबर लेखक रत्न शेखर सूरी के ग्रंथ श्रद्धा विधि प्रकरण में आस्थान शब्द का प्रयोग किया जाता है मुनि संघों के प्रति अनादर को, लेकिन इस शब्द का प्रयोग हम कई स्थानों पर मैन्युस्क्रिप्ट या शास्त्र के प्रति अनादर के रूप में भी देख सकते हैं। J.E. Coate, who has been a prominent scholar on Jain history and Jain philosophy, shares an incident where he realized how important a manuscript is for the Jains when he was in a temple at Ahmedabad, and by mistake he touched a manuscript or a
or a book by his feet. So the angry response he got from a lay woman, Shavika, made him realize that for a common Jain, knowledge in itself is important, knowledge in itself is sacred, और उसमें किसी भी तरह की सेक्टियन बाउंडेशंस नहीं है. ज्ञान बिना किसी सांप्रदायिक भेदभाव के, बिना किसी सांप्रदायिक मतभेद के अपने आप में महत्वपूर्ण है. और सबसे बड़ा उदाहरण जो इस नॉलेज ट्रेडिशन के प्रति रेवरेंस का अगर हमको चाहिए तो वो होगा ज्ञान भंडागार, जिसको साधारणतया सिंपली ज्ञान भंडार भी बोलते हैं और भी बोलते हैं. पूरे मेडिवल जैन हिस्ट्री में हम देखते हैं कि भंडागार है या जो ज्ञान भंडार है, वे अपने आप में नॉलेज के प्रति रेवरेंस को, नॉलेज के इंपॉर्टेंस को के सबसे अच्छे उदाहरण के रूप में हमारे सामने है. एज नलिनी बलबीर पुट्स इट, the Bhandara's temple libraries were positive manifestations of this prescriptive framework, which recommends that the manuscript should be taken care of. ये जो एक चिंतन था, जो ये एक फिलोसॉफिकल आइडिया था कि मैन्युस्क्रिप्ट्स को हमको प्रिजर्व करके रखना है, इसका मटेरियल रिप्रेजेंटेशन, इसका आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन हमको ज्ञान भंडागारों के रूप में मिलता है, जहां पर ना केवल मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जा रही थी बल्कि उनका प्रिजर्वेशन भी हो रहा था. और ज्ञान भंडागार जैन धर्म का, जैन समाज का, इंडियन इंटेलेक्चुअल स्फीयर को अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है. क्योंकि अगर इंडिया की हिस्ट्री में सबसे पहले किसी ने लाइब्रेरीज का कंस्ट्रक्शन करवाया, किसी ने लाइब्रेरीज कंस्ट्रक्ट की, तो वो जैन धर्म था, वो जैन समाज और जैन लेटी थी जिसने लाइब्रेरीज का कंस्ट्रक्शन कर मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व किया. श्वेतांबर ट्रेडिशंस के अनुसार जैन लाइब्रेरीज या भंडारों का कंस्ट्रक्शन 8वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, when prominent monastic leaders decided to construct libraries in major cities for conservation of Jain knowledge. इसमें सबसे बड़ी और प्रोमिनेंट स्टोरी हमको मिलती है 12th सेंचुरी रूलर कुमारपाल की, जिन्होंने पाटन में 21 लाइब्रेरीज का कंस्ट्रक्शन करवाया. एक और हमको प्रोमिनेंट उदाहरण मिलता है वस्तुपाल का, जिन्होंने पाटन, कैम्बे और बरोच में 180 मिलियन रुपीस के एक्सपेंडिचर पर 3 लाइब्रेरीज का कंस्ट्रक्शन करवाया. मेडिवल टाइम की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कंटिन्यूअस इन्वेजन्स के कारण कुमारपाल और वस्तुपाल की लाइब्रेरी सरवाइव नहीं कर पाई और टर्किश इन्वेडर्स के इन्वेजन्स में ये नष्ट हो गई. और हमको ये भी पता चलता है कि पाटन लाइब्रेरी की मैक्सिमम मैन्युस्क्रिप्ट्स राजस्थान के जैसलमेर में ट्रांसफर कर दी गई. ये जो पूरा सिनेरियो है, ये हमें एक और फिनोमिनन से अवेयर करवाता है, एक और प्रैक्टिस से अवेयर करवाता है, और वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इन्वेजन के समय मैन्युस्क्रिप्ट्स की प्रिजर्वेशन के लिए किए गए स्पेशल प्रिपरेशंस और विशेष रूप से किए गए जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल चेंजेस जो जैन समाज ने किए, वे भी अपने आप में मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन के एक इंपॉर्टेंट पार्ट. बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन जिन्होंने जैन टेम्पल्स का एक्सकवेशन किया, उस पर रिसर्च की, उन्होंने पाया कि मेडिवल टाइम के बहुत सारे जैन मंदिरों में सीक्रेट सेलर्स बनाए गए थे ताकि उनमें मैन्युस्क्रिप्ट्स, प्रतिमाएं, आइडल्स आदि इंपॉर्टेंट रिलीजियस इंपॉर्टेंस की वस्तुओं को रखा जाए. इसका सबसे अच्छा उदाहरण पीटर पेटरसन कैम्बे के शांतिनाथ मंदिर का देते हैं, जहां पर एक पूरा सीक्रेट सेलर विद अ सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप किया गया था ताकि मैन्युस्क्रिप्ट्स को सिक्योर करके रखा जा सके. और जैसे मैंने पहले भी कहा है, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन जैन समाज में था, जैन धर्म में था, इट वाज प्रेजेंट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. और ये प्रमाणित होता है उस मात्रा से, उस वॉल्यूमिनस मैन्युस्क्रिप्ट आर्काइव से, जो आज के समय भी सर्वाइव करता है. द एग्जांपल ऑफ पाटन कलेक्शंस व्हिच आर लार्जली प्रिजर्व्ड इन द हेमकृष्ण ज्ञान भंडागार शो द इंटेंसिव लेवल ऑन विच दिस बुक राइटिंग वाज बीइंग परफॉर्म्ड. एक और एग्जांपल जो हमको मिलता है वो है देवगिरी क्षमाश्रमण हस्तप्रत भंडागार कोबा का, जहां पर 2.5 लाख से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट्स आज के समय भी प्रिजर्व्ड है. तो इससे हम ये जान सकते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन का जो पूरा एक ट्रेडिशन था, ये कितना वाइड स्प्रेड था, ये कितने बड़े स्केल पर जैन समाज में किया जा रहा था. और इसके बाद जो दूसरा सेक्शन हमारा है वो है जैन अनेकांत एंड इंडियन नॉलेज का. इसमें हम न केवल बात करेंगे कि कैसे अनेकांतिक स्पिरिट या अनेकांतिक अप्रोच हमको जैन मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन में दिखती है, और साथ ही हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में इसका एक अपना सिग्निफिकेंट प्लेस है, इसका एक सिग्निफिकेंट स्थान है. जस्ट वेट फॉर अ मिनट, सॉरी.
तो इस डिस्कोर्स में, आज की प्रेजेंटेशन में, हम जैन मैन्युस्क्रिप्ट कल्चर के कॉन्ट्रीब्यूशंस को दो एस्पेक्ट्स में देखेंगे. फर्स्ट, द ट्रेडिशन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ नॉन जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन जैन भांडागार, एंड सेकंड, द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग कमेंटरीज ऑन द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ नॉन जैन टेक्स्ट्स व्हिच वर सेफगार्डेड इन द भांडागार. यानी जैन अजैन दर्शनों के या नॉन जैन फिलोसफी की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, उन्हें कैसे जैन भंडागारों में प्रिजर्व करके रखा गया, और कैसे इन प्रिजर्व मैन्युस्क्रिप्ट्स पर जैन आचार्यों ने और जैन इंटेलेक्चुअल्स ने कमेंटरीज की. ये तो वो एस्पेक्ट्स हैं जिन पर हम यहाँ पर फोकस करेंगे. The Jainas rendered historical service to Indian heritage not by just preserving the manuscripts of their own faith, but the interesting thing is that they preserved the manuscripts of other philosophies such as that of Brahmanical philosophy or Buddhist philosophy with the same diligence and with the same respect which they show to their own scriptures. और जैन मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन के इस महत्व को हम जेई कोट के इन शब्दों में समझ सकते हैं, who says that since the Jainas have been quite Catholic in their attitudes towards the collection and retention of texts, the Bhandar collections have also included valuable Brahmanical and Buddhist texts that would have been otherwise lost to posterity. यानी बहुत सारे ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट फिलोसफीज के टेक्स्ट जो जैन भंडागारों में हमको मिलते हैं, वे अगर जैन भंडागारों में सुरक्षित नहीं रखे जाते, अगर उनका प्रिजर्वेशन नहीं किया जाता, तो उनको वे आज हमारे लिए लुप्त हो चुके होते. दे वुड हैव बीन लॉस्ट विद टाइम. और इसका सबसे अच्छा एक उदाहरण अगर हमको देखना है तो वह पाटन की वादीनाथ पार्श्वनाथ मंदिर का. दिस टेम्पल हैज अ लार्ज मैन्युस्क्रिप्ट आर्काइव, और अधिकांश मैन्युस्क्रिप्ट जो इस मंदिर में हैं वो 1425 से 1435 के बीच में लिखी गई, जैसलमेर में लिखी गई पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट की पेपर कॉपीज है. जैसलमेर में इस ड्यूरेशन में आचार्य जिनभद्र सूरी के आदेश पर जो पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई, उनकी पेपर कॉपीज इस वादी पार्श्वनाथ टेम्पल में हमको मिलती है. और इस कलेक्शन का एक महत्वपूर्ण और रेलिवेंट पार्ट जो है वो ये है कि न्याय और अद्वैत वेदांत दर्शन के अनेक ग्रंथ भी हमको इस कलेक्शन में सिक्योर्ड मिलते हैं. और 15th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में इन ग्रंथों को सिक्योरली न केवल लिखा गया बल्कि प्रिजर्व करके रखा गया था. तो ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे जैन अपने मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन में, अपनी जैन ज्ञान भंडागारों में अपने दर्शन के टेक्स्ट के साथ साथ और स्कूल्स के टेक्स्ट को भी प्रिजर्व करके, लिखकर, डॉक्यूमेंट करके सुरक्षित रख रहे थे, संरक्षित रख रहे थे. और इस तरह उन्होंने इंडियन इंटेलेक्चुअल स्फीयर को, इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को बहुत बड़ा योगदान दिया है. अगर हम जैन भंडागारों का कोई भी अवेलेबल कैटलॉग का बेसिक कोई भी सर्वे करें या उनकी किसी भी ग्रंथ सूची को देखें, तो हमको ये पता चलेगा कि व्याकरण से लेके काव्य तक, दर्शन से लेके न्याय तक, हर क्षेत्र में लिखे गए नॉन जैन टेक्स्ट जैन भंडागारों में उपस्थित हैं. यहाँ तक कि वैदिक साहित्य से संबंधित मैन्युस्क्रिप्ट्स भी जैन भंडागारों में सुरक्षित रखी गई थी. और इसके लिए उमाकांत पी शाह ने बहुत अच्छी रिसर्च की है. उनका जो ग्रंथ है ट्रेजर्स ऑफ द जैन भंडार, उसमें हमको ये देखने को मिलता है कि कैसे वेरियस नॉलेज ब्रांचेस, वेरियस नॉलेज ट्रेडिशंस में लिखे गए नॉन जैन टेक्स्ट पूरी डिलीजेंस के साथ जैनों ने ज्ञान भंडागारों में प्रिजर्व किए थे. और इसमें अनेकांतिक अप्रोच कैसे देखने को मिलती है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमको मिलता है आमेर के शास्त्र भंडार में, जिस पर क्राग ने अपना बहुत एक्सटेंसिव वर्क किया है. क्राग अपने आर्टिकल में एक टेक्स्ट का रेफरेंस देते हैं जिसका नाम है जैन धर्म खंडन मंडल, एन ऑर्नामेंट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द जैन धर्म. और बराबर जो जिस टेक्स्ट का क्राग रेफरेंस देते हैं वो है जैन धर्म खंडन मंडल, एन ऑर्नामेंट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द जैन धर्म. और ये अनेकांतिक अप्रोच ही है, ये अनेकांतिक दृष्टिकोण ही है जिसके कारण द जैन्स even preserved the text which was aimed at the destruction of their philosophy in their libraries. और आज तक वो टेक्स्ट पूरी डिलीजेंस और पूरी सेफ्टी के साथ आमेर के शस्त्र भंडार में प्रिजर्व किया हुआ है. और यही वो अनेकांतिक अप्रोच है जो मतभेद के कारण किसी भी फिलॉसफी को या किसी भी विचार को डिस्कार्ड नहीं करती, बल्कि एंगेजमेंट और विमर्श में विश्वास रखती है. इसके लिए एक जो दूसरा उदाहरण मुझे मिला वो है वसुधर धरणी का, जिस पर पद्मनाभ एस जैनी ने अपना आर्टिकल लिखा है. अपने आर्टिकल के दौरान पद्मनाभ एस जैनी कहते हैं कि
जब 1961 में वे अहमदाबाद के टूर पर थे, तो उन्होंने पाया कि गुजरात की श्वेतांबर लेटी में, श्वेतांबर समाज में वसुधर धारणी जो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसका न केवल संरक्षण किया जा रहा था, बल्कि उसको डेली डे टू डे के रिचुअल्स में भी यूज किया जा रहा था। तो ये अपने आप में एक अनेकांतिक अप्रोच का सिंबल है कि कैसे एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट को न केवल प्रिजर्व किया जा रहा था, बल्कि किसी न किसी तरह जैन समाज ने जब उसमें रेलिवेंस देखी, उसका महत्व देखा, तो उसको अपने पूजन की परंपरा में, अपनी वर्शिप के रिचुअल में भी इंक्लूड कर दिया। पद्मनाभ एस जैनी भी जैनिज्म की इस रिसेप्टिवनेस को और इस लिबरल एटीट्यूड को मार्क करते हुए इसको क्लासिकल स्पिरिट ऑफ अनेकांतवाद का टर्म देते हैं, which is very proximate to the अनेकांतिक approach which we are using it here as a technical term. Padmanabh S. Jani also says that the Jainas are well known for their liberal attitude towards the book, originating from their rival schools. Their libraries store them, their acharyas write commentaries on them, and even teach them to their disciples in the classical spirit of अनेकांतवाद. इसी अनेकांतिक स्पिरिट के कारण न केवल जैन समाज ने, जैन लेटी ने अजैन शास्त्रों का संरक्षण किया, बल्कि उनके आचार्यों ने नॉन जैन टेक्स्ट पर कमेंटरीज लिखी, अपने शिष्यों को नॉन जैन टेक्स्ट के बारे में पढ़ाया, और इस पूरी प्रोसेस के पीछे जो एक कारण था वो था अनेकांतवाद, वो था अनेकांतवादी दृष्टिकोण, जिसको हमने अनेकांतिक स्पिरिट कहा। और यहीं पर जो हम बात करेंगे सेकंड एस्पेक्ट की, जो है अनेकांतिक स्पिरिट, जो अनेकांतिक स्पिरिट को कंप्राइज करता है, और वो है राइटिंग ऑफ कमेंटरीज ऑन नॉन जैन टेक्स्ट बाय जैन आचार्य, जिसको पद्मनाभ एस जैनी ने अनेकांतिक स्पिरिट का टर्म दिया है। अनेकांतवाद के कारण जो जैन इंटेलेक्चुअल्स थे, जो जैन आचार्य थे, दे डिड नॉट जस्ट कंटेंट देमसेल्व्स विद स्टडिंग ऑफ देयर ओन टेक्स्ट्स, they were equally facile, they were equally well versed in the texts of other philosophies, because Anekantwad believes in intellectual engagement, because Anekantwad believes in relativity of truth and relativity of principles. It encouraged the Jains to gain some knowledge, to gain a basic knowledge of other texts, of other philosophies, and to preserve them. वरिष्ठ इतिहासकार हम्पा नागराजिया इस पर कहते हैं कि the Jaina Shuddha Bhandara libraries were safe custodians of both Jain and non-Jain philosophical works. Jains were equally facile and possessed sound knowledge of Shad Darshanas, the 6 traditional systems of Indian philosophy, that is Nyaya, Vaisheshik, Samkhya, Yog, Vedant and Purva Mimamsa. अब यहाँ पर एक जो क्यूरियोसिटी किसी को भी हो सकती है, एक प्रश्न जो उठ सकता है कि why actually did Jain Acharyas study the text of other philosophies and why actually did they write commentaries on them? तो इसका आंसर भी हमको अनेकांतवाद की फिलॉसफी में ही मिलता है। एक चीज जो हमको अनेकांतवाद के बारे में समझनी चाहिए वो ये है कि अनेकांतवाद हैज बीन स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल डॉगमा, किसी भी तरह की बौद्धिक हटवादिता या किसी भी तरह की इंटेलेक्चुअल एब्सोल्यूटिज्म के विरुद्ध जैन फिलॉसफी शुरू से रही है। अनेकांतवाद का स्पेशल फीचर, जैसा आप सब जानते होंगे, ये नहीं है कि वो किसी भी थॉट को गलत मानता है, वो किसी भी ऑपोजिंग व्यू को गलत मानता है। उसका स्पेशल फीचर ये है कि वो इस एब्सोल्यूटिस्ट क्लेम को गलत मानता है कि जो मैं कह रहा हूं केवल वो सही है। उसके अनुसार मतभेद होना गलत बात नहीं है, उसके अनुसार डिफरेंट व्यू पॉइंट होना गलत बात नहीं है। उसके अनुसार ये जो एब्सोल्यूटिस्ट और अनेकांतवादी पर्सपेक्टिव है कि जो मैं कह रहा हूं केवल वही सही है, ओनली दैट इज ट्रू, दैट इज डॉगमा, दैट इज फॉल्सिफिकेशन। और यहाँ पर हमको मिलता है आचार्य मणिभद्र, जिन्होंने षड दर्शन समुच्चय पर बहुत महत्वपूर्ण टीका लिखी, उनका कथन जो कहते हैं, and as I have translated from the famous work An Introduction to Indian Philosophy by Chatterjee Datta, who translate his words into the following: I have no bias for Mahavir and none against Kapil and others. Reasonable words alone are acceptable to me, whosoever they might be. मेरे मन में न महावीर के लिए कोई बायसनेस है, ना कोई पक्षपात है, ना कपिल या किसी और के लिए कोई पक्ष द्वेष है। Whoever will say logical thing, whoever will say a thing which is supported by argument and प्रमाण, that alone is acceptable to me, चाहे वो किसी ने भी कही। और यही वो रिसेप्टिवनेस है, यही वो ओपननेस है जिसके कारण
the Jain acharyas and the Jain intellectuals were open towards other schools, were open for intellectual discussion, for intellectual engagement. और इसको समझने के लिए हमको एक और अनेकांतवाद के एक और फिनोमिनन को समझना पड़ेगा, जो है नयवाद का। नयवाद, जैसा आप सब जानते हैं, it accepts the presence of truth in some or the other manner, in some or the other relativity in every statement. हर कथन में सत्य को स्वीकार करना, जब तक वो कथन रिलेटिव हो, उस कथन में सत्य को स्वीकार करना नयवाद का एक फीचर है, जिसके कारण the Jain acharyas considered it important to engage and to initiate a discourse with every thought process. उन्होंने ये कहकर अपने अप्रोच या अपनी डोर्स बंद नहीं कर ली कि हम तो केवल वही डिस्कोर्स करेंगे, वही इंगेज, वही डिस्कस करेंगे जो हमारी फिलॉसफी में है, क्योंकि other philosophies might have, and other philosophies definitely have something which is true, with something which is worth discussing. We need to engage with them, we need to find common points on which we can have reconciliation, and we need to have a serious discourse with them. And because of this approach, they not only studied other texts, but also decided to write commentaries on them to initiate an intellectual engagement. ये जो नयवाद का डॉक्ट्रिन है, यही मानता है कि हर तत्व में partial knowledge of a particular aspect is truth. Because every tattva has infinite number of aspects, and one might has a different knowledge of a different aspect. That is why every principle needs to be approached and every principle needs to be studied with sincerity, because जो आप कह रहे हो वो हो सकता है कि उस तत्व का एक एस्पेक्ट हो, और जो दूसरा कह रहा है वो तत्व का दूसरा एस्पेक्ट हो. And it is very relevant in the present day time period where we are sort of getting intolerant and towards other viewpoints. We are getting intolerant towards differences. ऐसे टाइम पे जब इंटेलेक्चुअल डॉगमा बढ़ता जा रहा है, अनेकांतवाद और नयवाद के ये अप्रोच हमारे लिए बहुत रेलेवेंट हो जाता है. और इसी अनेकांतवाद की और नयवाद के अप्रोच के कारण the Jain acharyas wrote commentaries for the purpose of augmenting engagement and discourse. अगर हम इसको थोड़ा और स्पष्ट शब्दों में कहें, थोड़ा और एक फैंसीफुल सेंस में कहें, तो the Jain acharyas maintained this tradition of commentaries on non-Jain texts for the sake of knowledge, and did not bring in sectarian differences or sectarian biases in between. जब उन्होंने कमेंटरीज लिखी और जब उन्होंने अन्य फिलोसफीज के ग्रंथों को पढ़ा, तो उनके मन में किसी भी तरह का सेक्टेरियन डिफरेंस, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट नहीं था. They were doing it purely for the sake of knowledge, केवल ज्ञान मात्र के लिए, केवल इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट के लिए वे इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे. और इसी को पद्मनाभ जैनी ने अनेकांतिक स्पिरिट कहा है, इसी को हमने यहाँ पर अनेकांतिक अप्रोच कहा है, जो जैन मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन हमको शुरू से दिखती है, जो जैन मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन की पूरी परंपरा में, उसकी पूरी एग्जिस्टेंस में रिफ्लेक्ट होती है. और अगर इस हम कमेंटरी ट्रेडिशन की बात करें, तो जैन मैन्युस्क्रिप्ट कल्चर में भी कमेंटरी ट्रेडिशन हैड सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी, लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी. दर्शन, तत्वशास्त्र या फिर न्याय से संबंधित जो भी ग्रंथ थे, उन पर बहुत लार्ज नंबर्स में कमेंटरीज लिखी गई, टीकाएं और भाष्य किए गए. इसका एक एग्जांपल है न्याय दर्शन के एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ का, तर्क भाषा का, जिस पर सिद्धि चंद्र गणी की चंद्रिका एक प्रमुख प्रोमिनेंट टीका है, और शुभ विजय मुनि की टीका भी एक इज एन अनदर प्रोमिनेंट एग्जांपल. यहाँ पर एक जो चीज मेरे दिमाग में आई while I was actually conducting this research and while I was writing my research paper was that कि when Jain acharyas would have written these commentaries on non-Jain texts, they must have somehow implied or applied Jain worldview onto those texts, because Jain acharyas का जो वर्ल्ड व्यू रहा होगा वो निश्चित रूप से जैन फिलोसफी से इंस्पायर्ड रहा होगा. और जब उन्होंने नॉन जैन टेक्स्ट पर कमेंटरीज की होगी, तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हमको जैन वर्ल्ड व्यू या जैन आइडियाज का एप्लीकेशन देखने को मिला होगा. एंड आई केम अक्रॉस अ कमेंट्री ऑन कुमार संभव ऑफ कालिदास written by Jharu Pandit, which was titled as यशोधर नंदिनी. इस पर मैंने जब कुछ आर्टिकल्स पढ़े, तो यशोधर धरनी के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे पता चली वो ये है कि कमेंट की मंगलाचरण में या बेनेडिक्शन में
जहां कालिदास पर्वत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, गिरि शब्द का प्रयोग करते हैं, वही झारू पंडित ने भूभृत शब्द का प्रयोग किया। अब वैसे संस्कृत लेक्सिकन में भूभृत इज वन ऑफ द मेनी सिनोनिम्स ऑफ पर्वत और माउंटेन. दिस वर्ड इज स्पेशली यूज्ड इन जैन लिटरेचर, इन जैन आगमास एज कंपेयर टू ब्राह्मणिकल लिटरेचर. और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण, मोक्ष शास्त्र का मंगलाचरण, जहां उमा स्वामी सिद्ध भगवंतों के लिए मोक्ष के लिए भेतारम कर्म भूभृताम, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द माउंटेन्स ऑफ कर्म, इस विशेषण का प्रयोग करते हैं. तो वहां पर जो भूभृत शब्द है वो अपने आप में दिखाता है कि somehow the Jain writers or the Jain literature use this term more prominently, और वही टर्म हमको यहां पर दिखता है. तो ये जो एक, ये वैसे हो सकता है कि ये फार फेचड लगे, ये आपको लगे कि एग्जैजरेशन के साथ बोला जा रहा है, लेकिन ये जो बेनेडिक्शन है, ये जो प्रयोग है भूभृत शब्द का, ये दिखाता है दो आइडियोलॉजीज, दो सिद्धांतों के बीच में सम्मिश्रण को, इन्फ्यूजन को. इट कैन मेक अस think, it can make us realize that when the Jain acharyas were writing commentaries on non-Jain texts, they were actually leading to an infusion between Jain thoughts and their implication in the essentially non-Jain sphere of literature on which they were writing commentaries. जैसे कुमार संभव है, कुमार संभव is a non-Jain text, लेकिन उस पर जब एक जैन विद्वान, एक जैन इंटेलेक्चुअल अपनी कमेंट्री करेगा, तो वो बेसिकली जैन थॉट और नॉन जैन थॉट के बीच में एक इन्फ्यूजन, एक सम्मिश्रण क्रिएट करेगा, जो अपने आप में एक नया यूनिक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होगा. और यहां पर हमको एक चीज और जो सोचनी चाहिए वो ये है कि ये जो कमेंटरीज लिखी गई, इनका माना कि इनका जैन मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन में अपना इंपॉर्टेंस है, इसका जैन इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री में अपना इंपॉर्टेंस है, और अनेकांतिक अप्रोच को समझने के लिए, अनेकांतिक फिलॉसफी को समझने के लिए भी इनका एक अपना इंटेलेक्चुअल इंपॉर्टेंस है. लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये कमेंटरीज जो नॉन जैन फिलोसफीज पर लिखी गई, इनका उन नॉन जैन फिलोसफीज में क्या इंपॉर्टेंस है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की तर्क भाषा पर लिखी गई जैन कमेंट्री की, तो वो जो जैन कमेंट्री तर्क भाषा पर, वो जो टीका तर्क भाषा पर लिखी गई, उसका न्याय दर्शन में, उसका न्याय फिलॉसफी में क्या योगदान है, उसका न्याय फिलॉसफी में क्या प्लेस है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, हमें इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी. क्योंकि when the Jain acharyas were writing commentaries on non-Jain texts, they were basically augmenting a unique form of discourse which not only enriched the Jain manuscript tradition, the Jain intellectual tradition, but it also enriched the other non-Jain philosophical traditions which was being subject to manuscript, which were being subject to commentaries. और यही हमारे मेरे विचार से यही हमारे इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन का एक यूनिक एस्पेक्ट है, जिसमें एंगेजमेंट, जिसमें कॉन्टिन्यूअस इन्फ्यूजन और कॉन्टिन्यूअस एक एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हमको उसकी पूरी हिस्ट्री में देखने को मिलता है. और इन कमेंटरीज के माध्यम से, थ्रू दिस कमेंटरीज, द जैन आचार्यस मस्ट हैव enriched the Indian intellectual system, the Indian intellectual tradition in their own unique ways, जिस पर मेरे ख्याल से एक serious research required है, एक comparative analysis required है, and we can hope that it happens in near future. अगर in the conclusion, if we talk about this entire scenario of this entire topic, तो ये कहना exaggeration नहीं होगा कि जैन धर्म द्वारा विकसित सभी चिंतन, सभी थॉट प्रोसेस, सभी थॉट सिस्टम्स, चाहे वो फिर आध्यात्मिक हो, चाहे फिर वो धार्मिक हो, चाहे फिर वो बौद्धिक हो, दे ऑल हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेडरॉक ऑफ अनेकांत. अनेकांत वो बेडरॉक है, अनेकांत वो बेसिस है जिस पर जैन धर्म ने हर चिंतन विकसित किया. और इसी को सेंट्रल आर्गुमेंट बना के मैंने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि जैन मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन वाज डेफिनेटली रिफ्लेक्टिव ऑफ दैट अनेकांतिक अप्रोच, and it certainly reflects, it certainly was based on this anekantic approach and anekantic worldview which considered engagement and which considered relativity important. इस परंपरा का, इस ट्रेडिशन का महत्व यह है कि it went beyond communitarian boundaries, सेक्टेरियन बाउंड्रीज को परे रखकर इसने ज्ञान परंपरा की, इसने इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की सेवा की है, उसको सर्व किया है. because Anekant considers every form of knowledge as valuable and important for preservation, the Jain community, the Jain tradition
indeed preserved every form of knowledge, every form of manuscript with utter sincerity, and that is why it enriched the Indian intellectual tradition in its own rights. हमने इस पूरे डिस्कशन में दो पर्सपेक्टिव देखे जिसमें ये अनेकांतिक अप्रोच टू नॉलेज was applied. First, the practice of preserving manuscripts of non-Jain traditions, and second, the practice of writing erudite commentaries on such manuscripts. The Jains were no doubt sincere custodians of Indian knowledge and made their invaluable contributions to the same. एक जो ओपन माइंडेडनेस और एक जो रिसेप्टिवनेस जैन दर्शन में, जैन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में हमको दिखती है, वो डेफिनेटली अनेकांतिक स्पिरिट, अनेकांतिक अप्रोच का ही रिफ्लेक्शन है, जिसके कारण न केवल नॉन जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व किया गया, बल्कि उन पर कमेंटरीज लिखकर एक पूरा नया और यूनिक डिस्कोर्स इनिशिएट किया गया. और डेफिनेटली द जैन्स व्हाइल परस्यूइंग देयर अनेकांतिक अप्रोच वर अल्टीमेटली सर्विंग इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन. और जब मैंने इस चीज पर सोचा, इस टॉपिक पर सोचा कि हाउ Jain manuscript tradition is important for Indian intellectual tradition, I also thought of sort of pondered that how these manuscript traditions or how these Gyan Bhandagars exerted influence over the contemporary intellectual discourse. कैसे जो जैन मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन है, कैसे जो ज्ञान भंडागारों की परंपरा है, उसने अपने समय के इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को प्रभावित किया होगा, इसको इन्फ्लुएंस किया होगा. ये भी अपने आप में रिसर्च का विषय है, जिससे हम इस चीज को और अच्छे से समझ पाएंगे और कॉम्प्रिहेंसिवली समझ पाएंगे कि इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में जैन मैन्युस्क्रिप्ट कल्चर का क्या योगदान है, क्या इंपॉर्टेंट प्लेस है. I would just conclude by again quoting J.E. Quote, who has rightly said that students of India owe a great debt to the Jains for the hundreds and thousands of invaluable handwritten manuscripts preserved in their many Gyan Bhandaras. अगर हमको संक्षेप में कहना हो तो without any exaggeration we can say कि जो जैन मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन है, ये इंडियन इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री का एक बहुत ही golden epoch है. It is a golden epoch of India's intellectual history, of the history of knowledge based discourse, जिसको समझना, जिस पर रिसर्च करना आज के जैन समाज के लिए, आज की जैन अकेडमिया के लिए न केवल जैन हेरिटेज के कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, बल्कि इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, इंडियन नॉलेज सिस्टम की एक कॉम्प्रिहेंसिव और बृहत्तर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है. And I hope that in near future Jain academia and Jain historians all not only work on understanding the importance of Jain manuscript tradition, but also work on its place in the larger framework of Indian intellectual tradition. I would at the end once again thank the Ancient Jainism Foundation for this opportunity. I hope I sort of was able to initiate a discourse, a very important discourse in the perspective of Jain heritage, in the perspective of Jain history, and we can hope that it gets on to develop at a larger scale, at a bigger scale. आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप आज हमारे साथ जुड़े. Thank you once again. जय जिनेंद्र, नमस्कार. Thank you so much, Kshitish, for this wonderful lecture. Just to add a little information on a broader perspective, ये जो आप कह रहे थे ना कि जो दूसरे स्कूल्स ऑफ थॉट है, तो उनकी भी विचारधाराएं, उनके भी ग्रंथों का अध्ययन हो या फिर उन पे टीका टिप्पणी हो, तो इसकी जो नींव है ना, वो अर्ली मिडिवल पीरियड में हमें दिखती है. While I was doing my research on Shaivism and Shaktism, especially in the Deccan region, so when I was going through some Shaiva inscriptions, ठीक है, तो कम से कम 3 से 4 इंस्क्रिप्शंस ऐसे मुझे मिले हैं जहाँ पे शैव मठों में स्यादवाद के ग्रंथों का अध्ययन हो रहा है. कई मठों में तो ऐसे भी वहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से कि जहाँ पे जैन मुनियों को वहाँ पे अध्ययन करने के लिए स्थान दिया है, उनको कमेंट्रीज लिखने के लिए भी वहाँ पे स्पेस दी है, और साथ ही साथ उनको जो भिक्षादान जो होता है, तो उसकी भी सुविधा वहाँ पे की गई है.
तो हमें ये दिखता है कि इसकी जो नींव है म्यूचुअल हाउ टू से म्यूचुअल टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स philosophies and respecting them, तो इसकी नींव हमें अर्ली मिडिवल पीरियड में मिलती है। ये जो मैं इंस्टेंसेस दे रहा हूँ वो लगभग मान लीजिएगा 12वीं शताब्दी से है, 12वीं शताब्दी का डेक्कन या फिर स्पेशली कर्नाटक की हम बात करें। Same case was applied to Kolhapur since my research area was Kolhapur, तो कोल्हापुर में भी हमें यही टॉलरेंस दिखता है। So, this has always has been there. Tolerance, then intolerance, then again tolerance. तो ये जो ज्वार बाटा जो होता रहता है, it always has been there. But yes, it is very important to initiate this, tolerance process again. It's really important. So, any questions here? किसी को कुछ पूछना है, कुछ inputs देने हैं? Okay, I have two questions here. पहला क्वेश्चन ऐसा है कि एज यू मेंशन कि जैन भांडागार जो है तो नॉन जैन टेक्स्ट भी वहां पे थे उस ट्रेडिशन के and this points to a genuine interest of Jain intellectuals to understand the philosophies and thought processes of other religious traditions. Did this ever lead to new interpretations of Jain philosophy with reference to those of any other schools of thought? If yes, can you please share any example of such influence and interpretation? If I get you correctly, you mean to say the influence of other schools of thought over Jain philosophy and its interpretation? Yes, क्योंकि म्यूचुअल एक्सचेंज तो डेफिनेटली रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर मेरा फिलोसफी के क्षेत्र में तो आई डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर नॉलेज एज सच अपार्ट फ्रॉम सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट आई गेट कि जो तत्वशास्त्र था, एटिमोलॉजी था या फिर ऑन्टोलॉजी था, उसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे टर्म्स जो जैन टेक्स्ट में हमको मिलते हैं दे आर अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल एंगेजमेंट। बहुत सारे टर्म्स जो अदर स्कूल्स ऑफ थॉट स्पेशली न्याय या सांख्य ने डेवलप किए उन वो डेफिनेटली जैन टेक्स्ट में हमको देखने को मिलते हैं। और अगर हम देखें न्याय की जो लॉजिक की पूरी ट्रेडिशन है, लॉजिक की पूरी ट्रेडिशन अपने आप में इस चीज का एक जीता जाता उदाहरण है कि कैसे न्याय फिलोसफी विच वाज इनिशिएटेड बाय गौतम अक्षपाद, it later on became an essential for every philosophical school, and to develop a logic became an essential part of every philosophical school. इसके ज्यादा अच्छे हमको उदाहरण मिलते हैं जैन साहित्य में, जैन संस्कृत साहित्य में, जहां पर हम देखते हैं कि the influence of Kalidas or the influence of other prominent Sanskrit classical poets is visible upon Jain writers, Jain acharyas. Even Adi Puran जो है, आदि पुराण में हमको ये देखने को मिलता है कि देयर हैज बीन इन्फ्लुएंस ऑफ कालिदास ओवर इट। या फिर जो आइहोल इंस्क्रिप्शन है रवि कीर्ति का, वो अपने आप में तो सबसे अच्छा उदाहरण है जहां पर रवि कीर्ति कालिदास को और इफ आई एम करेक्ट दंडी को महाकवि की उपाधि देते हैं। तो यस, डेफिनेटली म्यूचुअल एंगेजमेंट कैन नॉट बी वन साइडेड एवर। सो दिस आल्सो इज एन इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ रिसर्च कि जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स की इंटरप्रिटेशन पे, जैन फिलोसफी की इंटरप्रिटेशन पर नॉन जैन इन्फ्लुएंस कैसे रहा। ये भी मेरे ख्याल से ये भी उसी अनेकांतिक स्पिरिट और अनेकांतिक अप्रोच का ही पार्ट है कि कैसे वो न केवल दूसरों को इंटरप्रेट कर रहे थे बल्कि जो दूसरों की अदर स्कूल्स ऑफ थॉट की फिलोसफी थी उसको अपनी फिलोसफी में कैसे मर्ज कर रहे थे, उस इंटरप्रिटेशन पर अपनी फिलोसफी कैसे मोल्ड कर रहे थे। वो भी मेरे ख्याल से अनेकांतिक अप्रोच का ही एक पार्ट है जिस पर वी शुड हैव a serious research. Yes, so the only blot that I have seen to this religious tolerance, तो वो कर्नाटक का ही एग्जाम्पल है, 12th सेंचुरी का ही है। अबलूर में जो वीर शैवों का जो मठ था, बिकॉज कर्नाटक या फिर डेक्कन की हम बात करते हैं, नॉट लेट अस नॉट कन्फाइन आवरसेल्व्स टू कर्नाटक ओनली। तो अगर हम डेक्कन की बात करते हैं तो डेक्कन में शैवों के कापालिक, कालामुख, पाशुपत, ये 3 संप्रदाय ज्यादा प्रभाव अपना रखे हुए थे। साथ ही साथ उसी पीरियड में वीर शैविज्म की एक नई शाखा वहां पे उदय हो रहा था, उस शाखा। So as far as Kalamukh and Pashupata are concerned, earlier they were intolerant to Jainism. Later on फिर tolerance दिखाते हैं, इतना tolerance है कि शैव मठ और जैन मठ एक दूसरे के अगल बगल में है।
उनके अपने भांडागार है, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स या फिर फिलोसॉफीज का एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन एक ही ब्लॉक जो मैंने अर्लियर मेंशन किया, तो वो वीरशैव हिस्ट्री में आता है। तो जैसा स्यादवाद या फिर जैनिज्म में अनेकांतवाद है, तो वैसे ही वीरशैविज्म में एकांतवाद है। और एकांतवाद अनेकांतवाद इसमें एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ था। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट वाज ड्यूरिंग 1186 और समथिंग लाइक दैट, या फिर उससे पहले भी हो सकता है। आई वुड से ऑन अ सेफर साइड 12th सेंचुरी, लेटर हाफ ऑफ 12th सेंचुरी। तो उसमें ये बहुत बड़ा डिबेट हुआ था अबलूर गांव में, कर्नाटक में। तो एकांतद रामय्य नाम का एक वीरशैव साधक था। तो उन्होंने जैन मुनियों को चैलेंज किया था कि कौन जीता है, एकांतवाद या अनेकांतवाद। ऑफ कोर्स इट वाज व्हाट डू यू से, वीरशैव इंस्क्रिप्शन, वीरशैव हिस्ट्री, तो ऑफ कोर्स दे हैड टू शो दैट Exactly. एकांतवाद वन। बट यू नो, उनकी जो जीत है, उन्होंने बहुत हाउ टू पुट इट, इट वाज क्वाइट शॉकिंग कि जब उनकी जीत हुई है एकांतवाद की, they cast away all the Jain munis. They destroyed the Jinabimbas over there. They took charge of the Jain Basdis. That was the only blot here, I would say. But apart from that, yes, as you mentioned, तो definitely वो exchange तो रहा ही है, literary exchange होगा, philosophical exchange होगा। But come to this, और एक question मेरे मन में आता है, वो ऐसा है कि अब ठीक है, साहित्य और तत्वज्ञान का तो एक्सचेंज डेफिनेटली हुआ है, वो इन्फ्लुएंस दिखता है। और उसमें रिसर्च करेंगे तो और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस हमें दिखेगा। बट एट द सेम टाइम, जो कैलीग्राफी, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो कैलीग्राफी है, जो आर्ट है, तो क्या उससे भी इन्फ्लुएंस दिखता है? हैव यू नोटिस दिस इन योर रिसर्च? To be very honest, Jain art in itself is a very vast topic और इस पे काफी रिसर्च हुआ है. But during the course of my research and during the course of my research paper, because I have not focused on Jain art and Jain art of manuscript, so I cannot definitively say. लेकिन इसका एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, which might be sort of irrelevant, which might seem irrelevant, but it can help us. जो महाभारत, जो रामायण हमको मेवाड़ी स्टाइल में महाराणा जगत सिंह के समय लिखी हुई मिलती है 16th सेंचुरी की, उसकी जो पूरी कहानी है वो लोकल डायलेक्ट में, और वो जो पूरी कहानी है, उस कहानी को रिसाइट किया था एक जैन मुनि ने। मैं उनका नाम अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ और मैं उनका नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अंडरस्टैंडेबली जो आर्ट है, जो मैन्युस्क्रिप्ट में जो मेवाड़ फॉर्म ऑफ आर्ट है, मिनिएचर पेंटिंग है, वो डेफिनेटली पूरी रामायण को हिंदू वर्जन में दिखाएगा। लेकिन एक जैन मुनि ने हिंदू वर्जन की रामायण का कंटेंट तैयार किया। तो मेरे ख्याल से यस, सिमिलरली व्हेन आर्ट इज समथिंग which cannot be you know congested, or which cannot be put in small boundaries, it is something which depends on social processes. और जहां तक मुझे याद आता है कि मेवाड़ की जो जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, राजस्थान की जो जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, स्पेशली ऑफ द पुराणास, पद्म पुराण हो गया या आप कह लीजिए हरिवंश पुराण, आई एम नॉट सेइंग विद % श्योरिटी बिकॉज आई हैव नॉट रिसर्च ऑन दिस विद प्रॉपर अटेंशन। लेकिन राजस्थान की जो जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स है, स्पेशली दोज ऑफ पुराना, उसमें हाँ, हमको जो चित्रण मिलता है, जो हमको पौराणिक चरित्रों का चित्रण मिलता है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहा होगा जो हिंदू या वैष्णवाई ट्रेडिशन है। और ओवरऑल ये हमको देखना पड़ेगा कि जो आर्ट है, आर्टिस्ट would not have been Jainas essentially, they would have been non-Jainas in most of the cases. So yes, that would also have been a source of engagement, बिल्कुल बिल्कुल सर। और अभी बड़ा अच्छा होगा अगर चन्नाहटा पुस्तकालय में आते हैं, जहां पर आपको ये पुस्तकें मिल जाएगी। अगर चन्नाहटा लाइब्रेरी है बीकानेर में, जिसमें आपको बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल सकती हैं। तो आज इस काम की जरूरत है कि जितने भी जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स है, उनको बिल्कुल सही परिप्रेक्ष्य में, बिना कंपैरेटिव स्टडी के सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाए, समझा जाए,
और प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया जाए और लोगों के साथ में उनको शेयर किया जाए, क्योंकि नहीं तो ये विलुप्त हो जाएंगे यहाँ से और अगली पीढ़ी को हम इस अद्भुत बौद्धिक संपदा से विमुक्त कर देंगे। तो आपका बहुत बहुत आभार, Thank you. Thank you. sir. धन्यवाद। Thank you, Trilak sir, for this beautiful input. And I'm sure कि research में इस perspective का बहुत ज़्यादा फायदा होगा. बिल्कुल बिल्कुल। Yes. Any other questions? तो हाँ, तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, Please हाँ, go on. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्षितिज, डॉक्टर क्षितिज जी, I'm Aditya. I congratulate you for a wonderful speech here. But one thing, like, I want to know, very simple question, and rather I would say possibilities of democracy in Anekhantavad. Like in our democracy, like we have different cultures, different languages, different, like, races. In that condition, and we are one of the most popular democracies. So in that scenario, Anekhantvad has the potentiality to become a, like, very powerful tool for democracy. So what type of possibilities you see in this theory of Anekhantavad? Democracy and Anekhantavad, can it be a tool for, like, can you develop, see, Anekhantavad, wonderful theory, but can we adapt it, can we adopt it and later on adapt it according to modern needs of the democracy, right? So what can be the tool, or what type of possibilities are there in Anekhantavad as far as our democracy is there? Ji. So first of all, Namaskar, sir. Dr. Aditya Gupta is in Faculty of Philosophy, University of Delhi, where he's teaching as an assistant professor. So we are glad to have you here, sir. And with regards to your question, definitely it is undoubtedly a fact that the reconciliatory approach of Anekant is very much required for today's democracy. And to basically answer what you basically put forward, I would like to take an example from today's presentation only. When the Jain Acharyas were writing commentaries on the texts of other schools of thought, when the Jainas were preserving the manuscripts of other philosophies, they were doing it with a democratic spirit, because for them engaging and for them discourse and engagement were important. The importance was not of differences. The importance was more of discourse and of engaging with people who would have certain differences. And the same applies to our democracy, where there definitely are differences, and it depends upon us to use reconciliatory manners, reconciliatory approaches to engage with those differences and to come on a common point. And the same we can see in this manuscript tradition, where through engagement, where through receptiveness, the Jain Acharyas continuously engaged with other philosophies. So I hope this answers your question, and I try to basically answer it with the perspective of what we discussed today. So I hope I was able to make a fair amount of explanation. Yes, wonderful explanation. Thank you, Kshitij Jain. Thank you so much. Thank you very much. Any other questions? Any other inputs? If not, then we can conclude. Anji, SB Shah, please. नमस्कार सर, आप सबको मेरे नमस्कार। मेरा तो एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। इन्होंने कोट किया था एक कमेंट्री में श्री मणिभद्र जी का। मेरे अब तक मेरे पढ़ने में कभी कोई मणिभद्र का कमेंट्री नहीं आया है। सो आई वाज जस्ट वंडरिंग, ये कमेंट्री का पूरा नाम देंगे तो मैं जरा उसका रिफर कर सकती हूँ। I am working on my thesis on Jain philosophy of language, and that would be very helpful. I've always come across Haribhadra ji when it comes to Anekantvad, Nayavad, and this. Manibhadra ji का मुझे पता नहीं है, तो अगर it would be very helpful to me. अगर आप बता पाएं कि उसका पूरा नाम क्या है वो कमेंट्री का। Thank you so much for this question. So first of all, Manibhadra ji ने हरिभद्र जी के
षट दर्शन समुच्चय पर कमेंट्री लिखी, और हाँ, हाँ, अभी उस कमेंट्री का नाम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट आई विल सर्टेनली फाइंड एंड आई विल सर्टेनली शेयर द सेम विथ यू. थैंक यू. oh, thank you so much. you. Wonderful. Thank you very much. All right. Can I ask one last, like a suggestion or question, like, Yes, please just go one ahead. last, because I know we are really running over Yes. time. Please go ahead. Like I really, मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो भी बात आज क्षितिज सर ने करी है यहाँ पर, एंड जो मुझे रियलाइज होता है कि दिस इज वी आर सिटिंग लाइक, ये जो फिलॉसफी हमारे पास है, ये जो नॉलेज और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है अनेकांतवाद का, ये हमारे पास इट्स प्योर गोल्ड, लाइक इट्स समथिंग which is you don't hear in any other philosophy or any other, with all due respect to them, anywhere in the world आपको ये नहीं समझ में, नहीं आपको ये philosophy वहाँ पे नजर आती है या सुनाई पड़ती है. तो I think as a group or as a community or as a researchers, scholars, हम कैसे इस पूरे इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं. तो बिकॉज द काइंड ऑफ हेट्रेड, काइंड ऑफ वायलेंस, discrimination we are seeing in the world, and all based on religious dogmas, I think this can be an answer to this can be an answer to all the problems in the world basically. तो हम इसे कैसे आगे ले जाएं, कैसे हम इसका प्रसार करें, आई थिंक वी शुड डिस्कस दिस इन आवर फ्यूचर डायलॉग, और अब आगे जो हमारी बातचीत होती है या इस ग्रुप के थ्रू, वी शुड थिंक समथिंग. Soumya, these views are really wonderful. I mean, this is the need of the hour. ये जो सजेशन या ये जो क्वेश्चन सौम्या जी ने पुट फॉरवर्ड किया है, इट रिक्वायर्स अ सेपरेट सेशन इटसेल्फ, बिकॉज़ definitely ancient Jainism is the forum for such discussions. So definitely together we can bring out some solution to promote Anekantavad. Definitely. Thanks a lot for all the inputs. It was a wonderful session. Kshitij, thanks a lot for sharing your research. It was a and great wish you pleasure. all the very best for your future endeavors. Thank you. Jai Jinendra. जय जिनेंद्र. Thank you everybody. तो आज का सेशन यही समाप्त हुआ, ऐसा मैं यहाँ पे घोषित करता हूँ. धन्यवाद. जय जिनेंद्र. Thank you so much. Jai Jinendra.